الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کے اس چیپٹر میں جہاں ہم نے کل والی تفصیل کے ساتھ جو دیکھا وہ ہے معاہدہ حدیبیہ۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر یہ طے کیا گیا مشرکین مکہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ اب 10 سال تک امن و امان رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف آئیں گے انہیں واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف کوئی آئے گا تو انہیں وہیں پہ روک لیا جائے گا۔ تو اس طرح ایک نئے دور کا چیپٹر یہاں پہ کھل جاتا ہے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد بہت سکون محسوس کیا تھا۔ پورے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرسکون زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد اطمینان کے ساتھ صحابہ کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے تمام آداب یہی مدینہ کے اسی وادی میں اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ تمام احکامات کا نزول ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کو مختلف طریقے سے معاشرتی احکامات کے ذریعے سے ان کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کو مختلف زندگی کے وہ سلیقے جو اسلامی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ تمام سلیقے انہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے پرسکون ہو گئے، کیونکہ آئے دن کی لڑائیاں اور آئے دن کی چال بازیوں سے وہ بہت زیادہ تنگ پڑ گئے تھے، اور اسی کے نتیجے میں اپنی اندرونی کیفیت کو اور داخلی کیفیت کو پرامن بنانا اور وہاں کے حالات کو سازگار کرنے کی کوشش کرنے سے وہ قاصر رہ گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مختلف کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو آغاز کیا جاتا ہے جہاں معاشرتی احکامات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اطراف میں رہنے والے چھوٹی چھوٹی جو بستیاں تھیں ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ کے ذریعے سے اسے مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اطراف میں رہنے والی ساری بستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ آ گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہاں معاہدات طے پائے اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ایک طرف مشرکین مکہ جو آئے دن لڑائیاں کر رہے تھے، آئے دن انتخاب کی آگ میں بھڑکتے ہوئے وہ کسی نہ کسی کی مدد کرتے ہوئے اور کسی نہ کسی کی مدد لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر رہے تھے، تو وہاں سے اطمینان ہوا۔ تو آپ نے سوچا کہ اس کے بعد اطراف میں رہنے والے بڑے بڑے جو ممالک ہیں، بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں جو باطل پر قائم ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر اللہ کا پیغام دیا جائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے آخر میں آپ نے حدیبیہ سے واپس تشریف لانے کے بعد مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہوں کے پاس جب خطوط روانہ کیے جاتے ہیں وہ اس وقت تک ان خطوط کو قبول نہیں کرتے اور اہمیت نہیں دیتے جب تک کہ ان پر ایک سکہ نہ مار دیا جائے یا مہر نہ لگائی جائے۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک ریاست کے قیام کے کوئی آپ کے پاس سکہ نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس مہر نہیں تھی۔ اسی وجہ سے تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش کیا۔ یہ 3 سطور میں لکھی گئی تھی، ایک میں محمد تھا اور دوسرے میں اللہ تھا اور تیسرے میں رسول تھا اور تیسرے میں اللہ تھا۔ اس طرح محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ یہ 3 سطوروں پر مشتمل ایک انگوٹھی بنوائی گئی، اور اس کے ذریعے سے جو خطوط روانہ کیے گئے اس پر مہر لگائی گئی۔ سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب کیا اور انہیں بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔
किया। तारीख के सफ़ात मुझे और आपको 8 खतूत जो मुख्तलिफ भारी बड़ी बड़ी मतलब जो है जो सल्तनतें थी उनकी तरफ जो रवाना किए जाने वाले खतूत और कासिद हैं उनकी तफसीलात मुझे और आपको सीरत की किताबों में मुयस्सर आती है। उनमें से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी के शाह हजस की तरफ आपने ख़त रवाना किया। और इस नज्जाशी का जो जिक्र किया जाता है वो हबशा के लिए हम तफसील के साथ सुन चुके हैं कि हबशा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म सितम मक्के की वादी में ढाया जा रहा था, वहाँ से अगर मतलब जो है किसी को सुकून मिला है तो वो हबशा की वादी थी, जहाँ नज्जाशी ने इन्हें सरपरस्ती देकर और वहाँ उन्हें कबूल करते हुए उन्हें आसानियाँ फराहम की थी। इस नज्जाशी का नाम, जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं, इसका नाम असहिमा बिन अजीर था। और इसके सिलसिले में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खत को उमर बिन उमैया बिन ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों इसके पास खत रवाना कर दिया। खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर यूँ मतलब जो है शुरुआत की, कहा कि ये खत मोहम्मद नबी की तरफ से नज्जासी असहम शाह हजस के नाम है। खत में यूँ शुरुआत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम खत में दिया वो इस तरह था कि इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वाहिद ला शरीक इलाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसने ना कोई बीवी इख्तियार की और ना ही लड़का, और इसमें इसकी भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बंदा और रसूल है। और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं इसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। इसे अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से बास बास को अल्लाह की बजाय रब न बनाएं। बस अब वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह होगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी की तरफ ख़त लिखकर बाकायदा तौर पर इस्लाम की दावत दी और उसे बताया कि मैं और आप एक अहले किताब हैं, क्योंकि आप पर भी जो अंबिया कराम आए हैं वो इसी पैगाम के साथ आए थे, तो बेहतर है कि अल्लाह के दीन की तरफ राग़िब हो जाओ। सामीन कराम, बहरहाल जब उमर बिन उमैया बिन ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त नज्जाशी के हवाले किया तो नज्जाशी ने इसको पढ़ा, क्योंकि पहले ही से वो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तफसीलात मालूम कर चुका था और वह जान चुका था कि ये वही नबी है जिसका तस्करा इनकी किताबों में आया है। तारीख बताती है कि नज्जाशी ने इस खत को पढ़कर आंख पर रखा और तख्त से जमीन पर उतर आया और हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया, यानी कलिमा तैयबा इसने पढ़ लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस क़से कासिदी के पास उसने भी खत का जवाब लिखा। खत इस तरह था कि मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में नज्जाशी हमा की तरफ से, ऐ अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सलाम और इसकी रहमत और बरकत हो, वो अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। अल्लाह के रसूल, मुझे आपके गिरामी नामा मिला जिसमें आपने ईसा अलैहिस्सलाम का मामला जिक्र किया है। खुदाए आसमान और ज़मीन की कसम, आपने जो कुछ जिक्र फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे तिनका बढ़कर न थे, वो वैसे ही हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमारे पास भेजा गया है हमने इसे जाना और आपके चचेरे भाई और आपके सहाबा कराम की मेहमान नवाजी की, और मैं शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल हैं और मैंने आपसे बैत की और आपके चचेरे भाई से बैत की है और इसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम कबूल किया है। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलकर नहीं आया, बल्कि वहाँ से ही उसने वहाँ उनके चचेरे भाई यानी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करके बाकायदा तौर पर इस्लाम में दाखिल होने की इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ख़त उन्हें रवाना किया था उस ख़त के साथ ये भी गुजारिश की थी, क्योंकि हबशा में मुक़ीम कुछ अफराद वहाँ पे अब भी मौजूद थे जो हिजरत करके वहाँ पे गए थे। उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र और दूसरे महाजिरीन हबशा को रवाना करने
انہیں یعنی انہیں مدینے کی طرف بھیج دینے کے لیے ایک مطلب جو ہے درخواست بھی لکھی تھی۔ اس کے نتیجے میں حضرت عمرو بن امیہ بن زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نجاشی نے 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کشتی جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ بہرحال یہ خیبر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے مطلب جو ہے دوسرے کشتی میں دوسرے بہت سارے ان کے بال بچے اور عورتیں موجود تھی۔ اس طرح یہ 2 کشتیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نجاشی نے بھیج دی اور اس طرح اسلام میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں اسی نجاشی بادشاہ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور اس کے وفات کے بعد صحابہ کرام سے کو لے کر آپ نے غائبانہ نماز پڑھی۔ یہاں سے ہی ہم وہ اس تاریخ کو لیتے ہیں اور اسی شریعہ کے مطابق ہم بھی غائبانہ جنازہ کی نماز جو پڑھا کرتے ہیں وہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات پر جہاں نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تھی وہاں دوسرے مطلب جو ہے ایک نجاشی بادشاہ وہاں پائے تخت پر بیٹھ جاتا ہے، مگر تاریخ بتاتی نہیں ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا یا پھر وہ ڈھیٹ ہی رہا۔ اس طرح یہ صفحہ وہاں پہ کلوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ مطلب اب ہم چلیں دوسرا خط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حبشہ کو مطلب جو ہے محاصر کیا، وہاں کے بادشاہ کو مسلمان بننے پر مطلب مجبور کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ کر اس نے اپنی زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دیتے ہوئے ایک بڑے مطلب جو ہے اور ایک سلطنت پر نظر ڈالتے ہیں جسے مقیس شاہ مصر کے نام مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، یعنی ایک مصر کی ایک بڑی مطلب جو ہے سلطنت جہاں میں نے اور آپ نے قرآن آیات کے ذریعے سے دیکھا کہ وہی وہ مصر ہے جہاں پہ فرعون نامی مطلب جو ہے ایک جبار مطلب جو ہے حکمران حکومت کرتا تھا جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ وہی وہ جگہ ہے جہاں کی سلطنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج بن مطع رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیس یعنی شاہ مصر پر جو حکومت کر رہا تھا اس کا نام مقیس تھا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کر دیا۔ اس خط کے بعد وہاں پر مقیس نے یہ دین کی جو تعلیم تھی اس خط کو حاتب بن ابی بلتہ کا انتخاب فرمایا گیا اور وہ باقاعدہ طور پر وہاں مقیس کے دربار میں پہنچ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شخص مطلب جو اس کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں پہ خط مطلب جو ہے میسر آیا تھا، حاتب رضی اللہ عنہ نے وہاں ان کے ساتھ مکالمہ بازی کی، مگر وہ مکالمہ بازی بڑی ہی سخت تھی۔ اس نے کہا مقیس سے، حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا ایک دن ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دن نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اور دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سے سب سے زیادہ سخت ہوئے اور یہود نے اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ دشمنی کی اور نصارہ اس سے زیادہ مطلب جو ہے ان کے ساتھ قریب سے قریب ہوتے چلے گئے، اور یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دین کی دعوت دی، مگر وہ ڈھیٹ بنا رہا اور اس نے جو خط لکھا جو ڈھیٹ بنا رہا، مگر پھر بھی حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے مطلب جو ہے قائل کرنے کے لیے مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو اس کے سامنے بیان کیا، مختلف طریقے سے لوگوں کی طرف سے چڑھائی جہاں کی گئی تھی اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا ساتھ دینا اور اس کے ذریعے سے وہاں ان کا غلبہ عطا کرنا، یہ ساری مطلب جو ہے تفصیلات حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اس کو تفصیل بتائی، جس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ قائل ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ایک خط مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آیا ہوا تھا اس کو چوم کر اس نے ایک ہاتھی کے دانت کی ڈبیا میں رکھا اور اسے باہر جو لگائی گئی تھی اس کے ایک لونڈی کے حوالے کیا اور باقاعدہ طور پہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ یہ خط اس نے اس طرح لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقیس عظیم
खबत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। माँ बाद मैंने आपका ख़त पढ़ा और आप इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की हुई बात और दावत को समझा। मुझे मालूम है कि अभी एक नबी की आमद बाकी है। मैं समझता था कि वो शाम से नमूदार होगा। मैं आपके कासिद का एजाज़ व अकराम किया। आपकी खिदमत में 2 लौंडियाँ भेज रहा हूँ जिसे खप्तियों में बड़ा रतबा हासिल है, और कपड़े भी भेज रहा हूँ, और आपके लिए सवारी के लिए एक केचर भी हदिये के तौर पर भेज रहा हूँ। आप पर सलाम है। सामईन इकराम, इसके सिलसिले में आता है कि अब भी दिल से कायल नहीं हुआ था, मगर सिर्फ मतलब जो है बात को सुनकर इसने तोहफे तहाइफों के साथ इन कासिद को रवाना कर दिया, मगर वो इस्लाम लाने के सिलसिले में नहीं कोई तारीख़ी सफ़ात हमें ये इतला नहीं देते कि वो इस्लाम कबूल किया है। जिसने मुक़ीस ने जो मतलब जो है लौंडियाँ भेजी थी, उनके सिलसिले में कहा जाता है कि ये 2 लौंडियाँ थीं, और इनका नाम, एक का नाम मारिया था और दूसरा का नाम सीरीन था। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि एक किचर भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया जिसका नाम दुलदुल था, और इस कहा जाता है कि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने तक ये जानवर जिंदा रहा, और उसके बाद ये मतलब जो है ख़त्म हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया को अपने पास रखा, और ये इस्लाम कबूल कर चुकी थी, और इन्हीं के बतन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे। और सीरीन जो एक दूसरी लौंडी जो ये इन्हीं के साथ भेजी गई थी, इनको हज़रत हस्सान बिन साबित अंसारी के हवाले किया गया। सामईन इकराम, ये दूसरी मतलब जो है फतह थी जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त के ज़रिए से वहाँ की हुकूमत को आपने ज़ेर कर लिया था। इसके बाद तीसरा ख़त मतलब जो है जो रवाना किया गया वो है शाह फारस खुसरू परवेज़ के नाम मतलब जो है ख़त रवाना कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बादशाह फारस खुसरू के पास रवाना किया, तो उसमें भी मतलब तफसीलात लिखी। मैं ये खतूत को पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि बिल्कुल मतलब जो है मिलता जुलता, यानी अल्लाह के दीन की तरफ आने की तरगीब और अपने नबी होने का ऐलान और अल्लाह की वहदानियत पर डटे रहने और उस पर जम जाने और उसकी तरफ वापस आने के सिलसिले में ये खतूत मतलब जो है लिखे गए हैं। किसी भी किताबों में आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये मुयस्सर आ जाएंगे। बहरहाल इस तरह खतूत आपने यहाँ मतलब जो है फारस की तरफ आपने रवाना कर दिया। ये भी एक बड़ी हुकूमत थी, और इस सल्तनत की तरफ जब भेजा गया तो इसमें आपने खासिद की हैसियत से हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा हस्मी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुंतखब किया और यहाँ ख़त देकर वहाँ रवाना कर दिया। और इन्हीं इसके सिलसिले में कहा जाता है कि ये ख़त बराह रास्त मतलब जो है नहीं पहुँचा, बल्कि ख़ुद मतलब जो है कहा जाता है कि बहरीन में एक मतलब जो है शख्स गवर्नर जो बाज़ान था उसके ज़रिए से इस ख़त को वहाँ पे भेजा गया खुसरू के पास। और बाज़ान की तरफ जब ये ख़त देकर वहाँ उस शहंशाह की तरफ भेजा गया तो उसने बाकायदा तौर पर बाज़ान को ये मतलब जो है मालूमात करने के लिए उस सल्तनत के बादशाह ने ये लिखा, यानी खुसरू ने ये लिखा कि ये जो शख्स जो हिजाज में है इसके यहाँ अपने 2 तवाना और मजबूत आदमी भेजो कि वो इसे मेरे पास हाजिर कर दे। बैजान ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हुकूमत थी, इसलिए वो चाहता था कि जो इस तरह का दावा करते हुए नबी होने का वो मुझे ख़त लिखता है, तो उसने फ़ख्र व गुरूर के साथ, हिकारत के साथ उसने अपने गवर्नर बाज़ान को ये हुक्म दिया कि 2 मजबूत मतलब जो है लोगों को भेजो और दोनों आदमियों को कहो कि उसे मतलब जो है मेरे पास हाजिर कर दे। बैजान ने इसकी तामील की। 2 आदमी वहाँ पे मुंतखब किए गए और इन्हें ख़त देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना किया गया, जिसमें आपको ये हुक्म दिया गया था कि इस तरह खुसरा के पास हाजिर हो जाएं। जब वो दोनों मतलब जब दोनों अशखास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हुए, तो एक ने कहा कि शहंशाह खुसरा ने शाह बाज़ान को एक मकतब के ज़रिए से हुक्म दिया है कि वो आपको उनके पास लाकर मतलब जो है भेज दिया जाए और रूबरू खुसरा के उनको खड़ा कर दिया जाए। बाज़ान ने इस काम के लिए मुझे आपकी तरफ भेजा है और आपसे मैं मतलब ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ खुसरा की तरफ रवाना हो जाएं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनी और कहा कि कल सुबह इंशाअल्लाह बात करेंगे। वो मतलब जो है परेशान हुए और फिर वहाँ से निकलकर उन्होंने इंतज़ार करना शुरू किया। इसी के दरमियान काया पलट गई। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि जहाँ खुसर परवेज़ हुकूमत कर रहा था वहाँ मतलब जो है ज़बरदस्त किस्म की इनकलाबी मतलब जो है कैफियत पैदा हो रही थी। लोग इख्तलाफात में मुब्तला हो गए थे, बगावत पर आमादा हो गए थे। इसी वजह से वहाँ खसर की फौज के हाथों फारस की फौज की बेदरपेश शिकस्त के बाद वहाँ खुसरो का ये अंदरूनी मतलब जो है जंगें थी, जिसके ज़रिए से कहा गया कि खुसरो का बेटा शेरुया अपने बाप को कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा। ये इतलाआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए से, वही के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। दूसरे दिन जब दोनों नुमाइंदगान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ की कारकर्दगी बताई तो दोनों हैरान और परेशान रह गए। ये कैसे मुमकिन है कि अभी वहीं से इतला मिली है और इस तरह ये मतलब शख्स इस तरह की पेशन गोई कर रहा है। तो वो कहा, उन्होंने बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हम कलाम होते हुए कहा, क्या हम इस बात की इतला वहाँ के बादशाह को दे दें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तुम खुद जाकर वहाँ पे देख लेना। वो दोनों रवाना हुए। वो बहरीन की तरफ, यमन की तरफ गए और यमन का जो गवर्नर था बाजान, जिसने ये दोनों मजबूत लोगों को भेजा था, वहाँ पर ये जाकर ये तफसीलात बताते हैं। उसके बाद तारीख के सफ़ात बताते हैं कि एक थोड़े से अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरिया का जो खुसरू का जो बेटा था शौरिया, इसका मतलब जो है इतला ये मिली कि इसने वाक़अतन वहाँ का कत्ल किया था। और शौरिया ने अपने ख़त में ये भी हिदायत की थी कि जिस शख्स के बारे में मेरे बाप ने तुम्हें लिखा था, इसे तादमे सानी कोई तकलीफ न पहुँचाई जाए। यानी इस तरह की पेशन गोई और इस तरह की ये जो तफसील मतलब जो है आंखों के सामने आई तो कहा जाता है कि बाजान और इसके फारसी जो रुफ़ा थे जो यमन में मौजूद थे, वो सारे के सारे मतलब जो है इस हक्कानियत को और इस मंजर को देखकर दार इस्लाम में दाखिल हो गए। इस तरह ये फतूहात कामयाबी के तहाने पर पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा मरहला शुरू किया और चौथा मरहला खत के जरिए से, कासिद के जरिए से जो रवाना किया, एक बड़ी मतलब जो है सल्तनत जो हर तरफ अपनी तारीख के सफ़ात में कहा जाता है कि वो बहुत उरूज पर, बहुत ज़्यादा सुपर पावर मतलब जो है रखने वाली वो सल्तनत थी। और वो कोई और नहीं बल्कि कसर शाह रूम था, जो मतलब जो है अपने साथ बहुत ज़्यादा पावर रखने वाली वो सल्तनत थी। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ भी, यानी वहाँ का जो हुकूमत करने वाला जो शाह था वह हरकुल शाह था, उसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त रवाना किया। ख़त में वही मतलब जो है हक्कानियत की तरफ दावत, नबी होने का मतलब जो है इकरार, और इसके साथ ही उन्हें दावत दीन पर जम जाने और वापस लौट कर अल्लाह की तरफ मतलब रुजू होने की तरफ तलक़ीन की गई। ये ख़त को लेकर जाने वाले वहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ये ख़त लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। वहाँ के सिलसिले में कहा जाता है कि एक लंबी कहानी इस सिलसिले में आती है कि वहाँ उस हरकुल ने मुख्तलिफ तरीक़े से इन लोगों को जमा किया और मुख्तलिफ तरीक़े से इन्हें मतलब जो है करीब लाकर, क्योंकि जो तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ख़त के ज़रिए से आई और लोगों के ज़रिए से उनकी तफसीलात मालूम होने लग गई थी कि किस तरह ये शख्स नबी होने का दावा करता है और इस तरह उसके फतूहात मतलब जो है उरूज पर पहुँचने लगे हैं। तो हरकुल ने इन्हें मतलब जो है वहाँ पर मालूमात हासिल करने के लिए देखा कि इसी दरमियान में कुरैश से काफ़िले की शक्ल में तिजारत की गरज से इस तरफ जाने वाला जो काफ़िला था वो अबू सुफियान के अंडर में एक बड़ा मतलब जो है काफ़िला वहाँ पे जाता है और तिजारत की गरज से वहाँ पे पहुँच जाता है। हरकुल इनको अपने दरबार में बुला लेता है और इस वक्त इनके गिर्द मतलब जो है रूम के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। हज़रत सुफियान बताते हैं कि वो उस वक्त अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे। तो इनके दरमियान कहा जाता है कि हरकुल ने बाकायदा तौर पर कहा कि मुझे बताओ कि इस शख्स ने जो नबी होने का दावा कर रहा है, इससे करीब तर निस्बती कौन है? अबू सुफियान वहाँ उठ खड़े हुए और फौरन ही कहा कि मैं। उसके बाद उसमें हम कलाम मतलब जो है जो गुफ्तो शनीद हुई, एक लंबी गुफ्तो शनीद थी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की उनकी तमाम कार्रवाइयों की तरफ उनको मतलब जो है पूछा गया कि क्या आपने हमला किया था, क्या मतलब जो है उन्होंने हक्कानियत की तरफ दावत दी थी, वगैरह
वगैरह वगैरह, वही मतलब जो है तमाम मालूमात जो पिछले सफ़ात में हम पढ़ चुके हैं, वही मालूमात उसने की। इसके बाद हरकुल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मंगवाया और इस ख़त को पढ़कर फारिग हुआ तो वहाँ आवाज़ें ही आवाज़ें मतलब जो है बुलंद होने लगी। हरकुल ने हमारे दरबार में हुक्म दिया कि हम बाहर निकल जाएं और मतलब जो है वहाँ लोगों ने मतलब जो है इस बात को कहना शुरू कर दिया कि अबू कब्शा के बेटे का मामला बड़ा जोर पकड़ गया है, ये तो बनु असफर रूमियों का बादशाह डरता है। इसके बाद मतलब यकीन होने लग गया था कि लाजिमन ये हरकुल ईमान ले आएगा, इसलिए कि कब्शा, जहाँ अबू कब्शा का जिक्र किया जा रहा है, इसका जिक्र मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वहाँ पर ये मतलब जो है अफवाहें फैलने लगी कि हरकुल ये बड़ी सल्तनत का जो बादशाह है, ये उस नबी से मतलब जो है डरने लग गया है। सामीन इकराम, इस नाम मुबारक का एक ही वक़्त का ये असर हो गया कि वो मतलब जो है हज़रत दखिया कल्बी रज़ी ताला अन्हु को माल पारचादात से नवाजा और उन्हें इनामात व अकरामात के साथ उन्हें मतलब जो है रवाना कर दिया। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि वहाँ हज़रत दहिया रज़ी ताला अन्हु तमाम मतलब जो है माल जो उसकी तरफ से उन्हें मिला था, वो माल और नवाजिशात लेकर वहाँ से निकले तो वहाँ हस्मा नामी कबीले के जज़ाम के लोगों ने आप पर हमला किया और वो तमाम चीज़ें जो अता की गई थी रूम फारह की तरफ से, वो तमाम के तमाम जो है गस्ब करके या डाके के ज़रिए से चोरी करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत दहिया इस तरह वापस लौट आते हैं और वहाँ की तमाम कार्रवाई मतलब जो है बताते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 सहाबा कराम की एक जमात लेकर हस्मा की तरफ रवाना हुए और वहाँ उन पर मतलब शबखून मारा, बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया और पाँचों और औरतों को हाँक कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना ले आए और हज़ारों ऊँट और 5000 बकरियों के सिलसिले में कहा जाता है कि वो भी ये कैदियों के साथ जो 100 खवातीन और बच्चे थे उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे को तकमील तक पहुँचाते हुए वापस लौट आए। सामीन इकराम, इस तरह कहा जाता है कि इस मारके में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी सल्तनत को ललकारा और उस पर दहशत तारी कर दी कि वाक़यतन ये नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है और इसकी बात अगर न मानी गई तो फिर मतलब जो है अपनी सल्तनत से भी हाथ धो बैठेंगे। खैर, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें मारके की तरफ अपने दरवाजे को खोला, यानी ख़त के ज़रिए से एक और सल्तनत की तरफ आपने पेश कदमी की और वो कोई और नहीं बल्कि मुंज़र बिन सावी था। ये ख़त मुंज़र बिन सावी यानी हाकिम बहरैन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ का पैगाम देते हुए ख़त रवाना कर दिया। इस ख़त को लेकर जाने वाले जो सहाबी थे जिनको मुंतखब किया गया था वो आला बिन अल हज़रमी रज़ी ताला अन्हु थे। इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त देकर उसमें वही हक़ानियत की बात, उसमें वही मतलब जो है अल्लाह की तरफ रुजू होने वाली बात का तकाजा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेज दिया। वो ख़त का एक मंजर थोड़ा सा देखते हुए चले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ ही कहते हुए ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद अल्लाह रसूलुल्लाह की जानिब से मुंज़र बिन सावी की तरफ, तुम पर सलाम हो और तुम्हारे साथ अल्लाह की हम्द करता हूँ जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद इसके बंदे और इसके रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह ज़ुल जलाल की याद दिलाता हूँ, याद रहे कि जो शख्स भलाई और खैर ख्वाही करेगा वो अपने ही लिए भलाई करेगा, और जो शख्स मेरे क़ासिदों की इताअत और इसके हुक्म की पैरवी करे इसने मेरी इताअत की, और इनके साथ खैर ख्वाही करे तो इसने मेरे साथ खैर ख्वाही की, और मेरे क़ासिदों ने तुम्हारी अच्छी तारीफ़ की है और मैं तुम्हारे कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कबूल कर ली है। लिहाजा मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए हैं इन्हें इस हाल पर छोड़ दो, मैंने ख़ताकारों को माफ़ कर दिया है, लिहाजा इससे कबूल कर लो, और जब तक तुम इस्लाह की राह इख्तियार किए रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे अमल से माजूल न करेंगे, और जो यहूदियत या मजूसी पर कायम रहे इस पर जजिया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक कह कर भेज दिया कि अगर तुम अपने दीन पर ही कायम रहना चाहते हो यहूदियत या मजूसियत पे तो फिर जजिया देना पड़ेगा, और अगर तुम दारे इस्लाम में दाखिल होते हो तो हमारी अमान में आ जाओगे। और ये भी कहा कि वहाँ जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनकी हिफाजत की जाए। कहा जाता है कि ये भी मतलब जो है मारका कामयाबी के साथ सर किया गया, यानी वहाँ पर मुंज़र बिन सावी ने इनको कबूल कर दिया और इसके नतीजे में वहाँ मुसलमान खैर व आफियत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी। सामीन इकराम,
कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठा ख़त क़ासिद के ज़रिए से जिन्हें रवाना किया, वो कहा जाता है कि होज़ा बिन अली साहब यानी यमामा की तरफ आपने ये ख़त रवाना कर दिया। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि ये ख़त भी जो ले जाने वाले थे वो क़ासिद जो थे वो सुलेत बिन उमरू आमिर का इंतखाब किया। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि जब ये ख़त लेकर वहाँ गए तो इनकी महर लगे हुए ख़त को लेकर खुदा के पास तशरीफ़ ले गए, तो इसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को मेहमान बनाया और मुबारकबाद दी, और हज़रत सुलेत ने इस ख़त को पढ़कर सुनाया तो इसने दरमियानी किस्म का जवाब दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ की दावत देते हैं इसकी बेहतरी और उम्दगी का क्या पूछना, और अरब पर मेरी हैयत बैठी हुई है, इसीलिए कुछ कार परदाजी मेरे ज़िम्मे है, मैं आपकी पैरवी करूँगा। इसने हज़रत सुलेत को तहाइफ भी दिए और हिजर का बना हुआ कपड़ा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना कर दिया। हज़रत सुलेत तहाइफ लेकर खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और ख़त पढ़कर सुनाया। अगर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर उस ख़त को मतलब जो है नीचे रखा कि अगर वो ज़मीन का एक टुकड़ा भी मुझसे तलब करे तो मैं इसे न दूंगा, यानी वो मतलब जो है मादा परस्ती के साथ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दिया था, यानी ना हाँ में जवाब था ना में जवाब था। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का जवाब वहाँ पे अर्ज़ किया। सामईन इकराम, कहा जाता है कि ये मतलब जो है जो मामला हुआ, इसके इंतकाल जब हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरसे के बाद फरमाया था कि यमामा में कज़्ज़ाब रूनुमा होने वाला है जो मेरे बाद कत्ल किया जाएगा। एक कहने वाले ने कहा कि या रसूलल्लाह, इसे कौन कत्ल करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यही सहाबा कराम मतलब जो है उसे कत्ल करेंगे, और वो वही मुकाम है जहाँ मुसल्लिमा कज़्ज़ाब मतलब जो है रोनुमा हुआ था। सामईन इकराम, इस तरह इस मौक़े को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त के ज़रिए से हल करने की कोशिश की थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां ख़त जहाँ रवाना किया वो है हारिस बिन अबी शमर गस्सानी हाकिम यानी दमिश्क हाकिम की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त के ज़रिए से पैगाम हक़ की तरफ इन्हें बुलाया। ये ख़त क़बीला असद बिन ख़ज़ीमा के से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाबी हज़रत शुजा बिन वहब के बदस्त मतलब जो है रवाना कर दिया, और कहा जाता है कि जब उन्होंने ये ख़त हारिस के हवाले किया तो इसने कहा कि मुझसे मेरी बादशाहियत को कौन छीन सकता है, मैं इस पर यलगार करने ही वाला हूँ और इस्लाम न लाया। यानी ये मतलब जो है बात को नहीं माना, बल्कि अकड़ दिखाई, गुरूर दिखाई और कहा कि मैं मतलब जो है इस नबी की सल्तनत पर हुकूमत करूँगा। सामईन इकराम, ये यहूदी मतलब जो है कबीला था, इसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और इस तरह इसका जवाब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसर आ गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8वां और आखिरी ख़त जहाँ पे लिखा है, तारीख़ बताती है कि वो शाह ओमान की तरफ आपने एक ख़त लिख कर भेज दिया, और वो ख़त भी वही हक़ानियत की तरफ दावत थी और अल्लाह की तरफ रुजू होने की दावत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़त शाह अमान बिन जैफ़र को जो भेजा वो इसके भाई अबद के नाम भी लिखा, यानी वहाँ 2 भाई मतलब जो है हुकूमतें करते थे, एक है जाफ़र और इसका भाई अबद। ये दोनों मतलब जहाँ हुकूमतें करते थे, इनके वालिद का नाम जुलंदी था, और ये ख़त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी ताला अन्हु का इंतखाब करते हुए क़ासिद की हैसियत से इन्हें ओमान की तरफ रवाना कर दिया। वहाँ पर ये दोनों भाइयों से हम कलामी होती है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी ताला अन्हु इन दोनों भाइयों से मतलब जो है मुख्तलिफ तरह से गुफ्त शनीद करते हैं, उस गुफ्त शनीद के ज़रिए से इस्लाम की दावत देते हैं, सारी तफसीलात बताते हैं, और वो तमाम दहशत उनके अंदर बिठा देते हैं कि इन मतलब जो है इस्लामी रियासत यानी मदीना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ है, और वहाँ हक़ बात कही जाती है, और उस हक़ ही के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद के नतीजे में गलबा हासिल हो जाता है, और वो कामयाबी के साथ इस मतलब जो है छोटी सी रियासत की वहाँ पे तश्कील हो गई है। तमाम गुफ्तगुओं के बाद ये दोनों भाई पहले तो अकड़ दिखाते हैं, मगर उसके बाद वो मान ही जाते हैं कि ये हो ना हो एक बेहतरीन मतलब जो है सुपह सालारी के साथ ये
ریاست تشکیل پائی ہے اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ اصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انہیں آزاد کر دیا. اور جس نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میری مددگار ثابت نہیں ہوں گے. یہ خط کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا تھا. اس وجہ سے دونوں بھائیوں نے باقاعدہ طور پر نبی ہونے کی صداقت پیش کر دی اور اس کے بعد ایمان میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. سامعین کرام، یہ وہ خطوط تھے جس کا 8 خطوط کا تذکرہ مجھے اور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. ان خطوط کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں کو آپ نے پیغام حق پہنچایا تھا. اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مضبوط ہو گئی اور ان کے نزدیک اللہ کا دین اور اس کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا. سامعین کرام، کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، مگر پیغام حق ضرور ان لوگوں تک پہنچا. جن لوگوں تک پہنچا، جنہوں نے قبول کیا، وہ باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین کے اس پیغام کے حق کے ساتھ بلندیوں تک پہنچے. اور جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اگلے جو مرحلہ آئے گا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جو تلوار اٹھاتے ہیں وہی وہ سلطنتیں بالکل جو ہے زوال کی طرف آتے ہیں، وہاں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سامعین کرام، اس طرح اس خطوط کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرحلے کے ذریعے سے آپ نے باقاعدہ طور پر وہاں اپنی دعوت کا اور اللہ رب العالمین کی حقانیت کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا. اس کے بعد تاریخ کے صفحات کو دوسری طرف الٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جو ہے غزوے کا اعلان ہوتا ہے اور وہ غزوہ کوئی اور نہیں بلکہ غزوہ خیبر ہے. اس خیبر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے جہاں خیلے بھی تھے اور کھیتیاں بھی تھی. اب یہ بستی رہ گئی ہے اور اس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مندانہ ہے. آج بھی اگر آپ مکے کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں خیبر کی طرف جائیں تو وہاں ان کی ابھی بھی ان لوگوں کی وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی بستیاں اب بھی موجود ہیں. اور اس وقت سعودی حکومتیں اس کو جو ہے اس کو رکھ کر اس میں آثار قدیمہ میں اسے شمار کرتے ہوئے وہاں زیارت کا جو ہے سامان کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی لوگ وہاں مکے کی طرف روانہ ہو جائیں مدینے کی طرف تو وہاں آپ جو ہے اس خیبر کی طرف روانہ ہو کر ان بستیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. خیر، ہم دیکھ رہے ہیں اس خیبر کے قصبے کے سلسلے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے نتیجے سے جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پہ معاہدہ ہو گیا تھا. معاہدے کے نتیجے میں 10 سال کے لیے تمام جنگ بندیاں بند ہو گئی تھی اور اس لیے آپ نے توجہ جو ہے اس طرح مبذول کی کہ اب جو ہے ایک جھٹکا لگا کر ان جو ہے دوسری طرف جن کی طاقتیں ریاست اسلامیہ کو دھچکا دے رہی ہیں ان کے خاتمے کا وقت ہے اور وہ یہود اور قبائل نجد ہیں. ان سے حساب کتاب چکانا ضروری ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانب سے ممکن امن و سلامتی حاصل ہو جانے اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو جائے، اس لیے آپ نے اس کشمکش کے لیے اس طرح کی دعوت کا جہاں پیغام رسانی کا کام کیا تھا قاصدوں کے ذریعے سے، وہاں باقاعدہ طور پر اس خیبر کی طرف بھی متوجہ ہو گئے. خیبر سازشوں کا اڈا تھا اور دستکاریوں کا اڈا تھا اور فوجی اینڈ گیسٹ کا جو ہے مرکز تھا اور لڑنے اور بھڑکانے اور جنگ کی آگ جو ہے بھڑکانے کا ایک بڑی جو ہے کان سمجھی جاتی تھی کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے انہیں باہر نکال پھینکا تھا اور یہی بنو قریظ تھے جو وہاں بنو نصیر تھے جو وہاں سے باہر نکلے تو وہ جو ہے کچھ لوگ دوسرے طرف چلے گئے اور جتنے بڑے بڑے سرداران تھے وہ سارے کے سارے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنا ایک گڑھ قائم کر رکھا تھا اور وہیں اسی کے ذریعے سے ان اہل جو خیبر تھے وہ جنگ خندق میں مشرکین کے ساتھ گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بنو قریظ کو غدار، عذر اور خیانت پر آمادہ کر دیا تھا. نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے سے 5ویں کالم یعنی منافقین اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور
बदुओं से राबता मतलब जो है कायम करते हुए इन्हें जंग की तैयारियों पर आमादा कर लिया था और अपनी इन्हीं कार्रवाइयों के जरिए से मुसलमानों को आजमाइशों में डाल रखा था। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद करने का इन्होंने बाकायदा प्रोग्राम बना रखा था। इन हालात से मजबूर होकर मुसलमानों को बार बार फौजी मुहिमात मतलब जो है लड़नी पड़ी थी और इसके जरिए से मुख्तलिफ मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे परेशान हाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ तवज्जो देकर कुरैश की तरफ से खामोशी और फिर इन यहूदियों का मुहासिबा करने का वक्त आ पहुंचा है और यौमुल हिसाब करीब है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ चढ़ाई करने का बाकायदा प्लान बनाया। तारीख की बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ सूरों के ज़रिए से हम मेरे और आपके सामने इसके तफसीलात रखी हुई हैं कि मुनाफिकीन कमज़ोर ईमान वाले लोग इस मतलब जो है सफ़र के दौरान में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि हम खैबर की तरफ रवाना हो जाएंगे, वहाँ मुनाफिकीन भी अपना हिस्सा डालना चाहते थे। मुख्तलिफ लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के की तरफ उस उम्रा के लिए नहीं गए थे, वो लोग भी हिस्सा डालना चाहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म मौसूल हुआ। वो है सूरा नंबर 48 आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया है। आइए उसका तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जब तुम अम्वाल गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगो तो ये पीछे छोड़े गए लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह की बात बदल जाए और इनसे कह देना कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ने पहले ही से ये बात कह दी है कि इस पर ये लोग कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो। हालांकि दर हकीकत ये है कि ये लोग कम ही समझते हैं। इस आयत के नुज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जहां रवानगी का इरादा किया तो ऐलान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही लोग जाएंगे जो वाक़या जिहाद की रग़बत और ख्वाहिश रखते हैं। इस ऐलान के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिलेक्शन किया वो सिर्फ वही लोगों का सिलेक्शन था जिन्होंने हुदैबिया में दरख्त के नीचे बैत रिज़वान मतलब जो है अदा की थी और इसकी तादाद तारीख बताती है 1400 और कहीं बताया जाता है 1500। इस तरह इस गज़वे के दौरान में मदीने की तरफ हज़रत सबा बिन अरफात गफ़ारी रज़ी ताला अन्हु को मामून किया और वहाँ के हिफाजत के लिए उन्हें मतलब जो है छोड़ दिया और बाकी तमाम मतलब जो है 1400-1500 का एक काफ़िला, एक दस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर खैबर की तरफ रवाना हो गए। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि इसी दौरान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए, वो भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। वो अपनी बस्ती से निकल कर मदीने की तरफ रवाना हो गए। तारीख बताती है कि वो वहाँ पे आए और वहाँ सबा बिन अरफात रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ अपने दस्ते के साथ रवाना हो चुके थे। तो वो उनके साथ मालूमात लेते हैं और मालूम होने के बाद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हो गए हैं, वो चलते हुए खैबर की तरफ चले जाते हैं। तारीख बताती है कि जहाँ उस वक्त फतह खैबर हो गई थी और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे और बैत करते हुए दारे इस्लाम में दाखिल हो गए। सामईन इकराम, इस तरह ये एक जो गज़वा है इसकी शुरुआत यानी यहाँ से इसका आगाज़ होता है। इस तरफ दूसरी तरफ अगर नज़र उठाकर देखा जाए तो वहाँ इस मौके पर यहूद मतलब जो है अपनी कार्रवाइयाँ और अपनी सरगर्मियों में मतलब जो है मस्त व मगन मतलब जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इस मौके पर यहूदी हिमायत में मुनाफिकीन ने भी ख़ास मतलब जो है तकोदो की और यहाँ मदीने में रहते हुए भी वो रईसुल मुनाफिक यानी अब्दुल्ला बिन उबय ने भी यहूद और खैबर को ये पैगाम भिजवा दिया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ रुख किया है, लिहाजा चौकन्ना हो जाओ और तैयारी कर लो और देखो डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी तादाद तुम्हारे साजो सामान ज्यादा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा बहुत थोड़े हैं और तही दस्त हैं, इसलिए के पास हथियार भी बहुत थोड़े हैं। ये कहकर अब्दुल्ला बिन उबय ने वहाँ खैबर पर ये पैगाम भेजा, मगर क्योंकि वो इससे पहले इनसे मतलब जो है अब्दुल्ला बिन उबय से वो धस
چکے تھے، یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایسا مطلب جو ہے مادہ پرست شخص ہے کہ جب بھی ہوتا ہے تو غرض کے خاطر، اگر اپنی غرض ہے تو مدد کرے گا، اور اگر اپنی غرض نہ ہے تو وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ اس کی ساری تفصیلات ہم پچھلی کلاسز میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں بنو قریظ کا معاملہ ہو یا بنو نصیر کا مطلب معاملہ ہو، وہاں اسی منافق نے کیسا کمال مطلب جو ہے دکھایا تھا۔ سامعین کرام، بہرحال اہل مطلب جو ہے جو خیبر تھے ان کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خیبر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کنان بن عقیق اور ہدا بن قیس کو جو حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا، اور کس طرح ان کا انجام ہوا تھا۔ انہوں نے بنو غطفان کی طرف مطلب جو ہے قاصد روانہ کر دیے اور کہا کہ ہماری مدد کی جائے، اور خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف جو مدد کر رہے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بنو غطفان کی طرف ایک قاصد بھیج کر ان کی مدد کے لیے انہیں مطلب جو ہے طلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ اور دستہ لیے ہوئے روانہ ہو گئے اور وہاں پر ایک جگہ پہنچے، خیبر میں جبل اسیر کے نام سے کہا جاتا ہے، وہاں ایک بستی ہے رجی کے نام سے، اس کی تفصیلات ہم پچھلی بار دیکھ چکے ہیں۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے، وہاں کے سردار نے چال بازی کے ذریعے سے، سازش کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ ہماری بستی والے مسلمان ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے مطلب جو ہے معلمین کی حیثیت سے صحابہ کرام کو روانہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، اور اس نے درمیان میں جا کر وہاں مطلب جو ہے ان تمام صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اس مقام پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھا، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے وہ روانہ ہو گئے خیبر کی طرف۔ مگر کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے صفحات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قافلہ جو بنو غطفان کی طرف قاصد کی حیثیت سے جہاں انہیں بھی مدد کے لیے بلایا گیا تھا، وہ مدد لے کر نکل کھڑے ہوئے، مگر اللہ کی اپنی چال ہوتی ہے، انہیں مطلب جو ہے ایسا لگا کہ پیچھے کی طرف سے ایک شور و غل سنائی دینے لگا ہے، آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ وہ ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ مسلمان ہمارے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر کے ہمارے ہی مطلب جو ہے قبیلے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ آئے، اور وہاں جو خیبر کے مسلمانوں کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا، اور ان کا جو جواب مطلب جو ہے کچھ بھی نہ گیا، نہ ساتھ گئی، نہ مددگار ثابت ہوئے، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے وہ اپنے ہی قبیلے کی طرف لوٹ آئے تھے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خیبر کی طرف روانہ ہوئے، رجی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں آپ نے وہاں شہید مطلب جو ہے جو صحابہ کرام تھے ان کو ان کی طرف دعا خیر کی، اور اس کے بعد وہاں مطلب جو ہے ماہرین کو بلایا جو لشکر کی طرف مطلب جو ہے آئے، اور ان میں سے 2 مطلب اشخاص کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایسے مطلب ماہرین ہیں جو راستہ بتائیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایسا راستہ مطلب جو ہے ہو جسے اختیار کرنے کے نتیجے میں خیبر میں شمال کی جانب سے، یعنی مدینے کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین اسٹریٹجی تیار کر دی تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے سے ایک طرف تو وہ یہود کو شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں گے۔ یہ بہترین کارروائی کے لیے آپ نے وہاں 2 ماہرین کو بلایا، اس میں کہ ایک مطلب جو ہے ماہر کا ذکر جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے حسیل کے نام سے، اس نے مطلب مختلف راستے بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو رد کر دیا اور ایک کی طرف سے آپ مطمئن ہو گئے، اور اس طرح آپ وہاں خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامعین کرام، یہود کو یہ کانو کان خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بنو غطفان قبیلہ ہماری مدد کے لیے ہم بھیج چکے ہیں، وہ حامی بھر چکے ہیں، اور وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور ہم مطلب جو ہے ان پر دھاوا بول دیں گے، مگر خدا کا کرنا کچھ اور تھا، وہ پیچھے کے پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا راستہ لیے ہوئے بڑی مطلب جو ہے کٹھن راہوں کے ساتھ وہ راستہ اختیار کر کے دوسری طرف شام کی طرف سے وہ داخل ہو رہے تھے، اس وجہ سے انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی اور وہ کانو کان خبر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور تھا کہ رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے، چنانچہ اس رات میں جب وہ صبح ہوئی تو آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत यानी अंधेरे में फजर की नमाज अदा की। इसके बाद मुसलमान सवार होकर खैबर की तरफ बढ़े। इधर अहले खबर बेखबरी में अपने फावड़े और खांची लेकर अपनी खेती बाड़ी के लिए निकल खड़े हुए थे। तारीख बताती है कि अचानक उन्होंने लश्कर इस्लाम को देखा तो चीखने चिल्लाना शुरू करके शहर की तरफ भागने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा के कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आ गए हैं। वो चिल्ला रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखकर वो फरमाने लगे, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ, अल्लाह अकबर, तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के दरमियान मैदान में उतर पड़ते हैं तो इस डरे हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए खैबर के किले की तरफ रवाना हुए। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के पड़ाव के लिए एक जगह का इंतखाब किया। इसमें खब्बाब बिन मंजर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। वह आकर पूछते हैं, या रसूलल्लाह, ये बतलाइए मुकाम पर आपने जहाँ पड़ाव डाला हुआ है ये महज आपकी जंगी तदबीर और राय है आप या अल्लाह की तरफ से हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं खब्बाब, बल्कि ये महज एक राय और तदबीर है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये मुकाम किलाए नतात के बहुत ही करीब है और खैबर के सारे जंगजू अफराद इसी किले में रहते हैं। इन्हें हमारे हालात का पूरा पूरा इल्म रहेगा और हमें इन्हें हालात की खबर न होगी और इनके तीर हम तक पहुंच जाएंगे और हमारे तीर इन तक न पहुंच सकेंगे। हम इनके शबखून से महफूज न रह सकेंगे। फिर ये जो इलाका है ये मुकाम खजूरों के दरमियान मतलब जो है अटा हुआ है और बस्ती में वाक़ है और यहाँ की ज़मीन भी वबाई है। इसीलिए मुनासिब होगा कि आप किसी ऐसी जगह पड़ाव डालने का हुक्म दें जो मफासिद से खाली हो और हम इस जगह मुंतकिल होकर पड़ाव डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात को कबूल फरमाया और कहा कि तुमने जो राय दी है बिल्कुल दुरुस्त दी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल खड़े हुए और दूसरी जगह रवाना हो गए। तो इसी का जिक्र कुरान मजीद में बड़ी इस तफसील के साथ हमें यूँ मिलता है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है जिसका तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह साथ में वहाँ सूरे मतलब जो है अहज़ाब में हमें इसकी तफसीलात मिलती हैं। खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आगे बढ़े और वहाँ जाकर उन्होंने पड़ाव डाला और लश्कर को ठहराया और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आगे दुआ फरमाई। वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही दर्दमंदाना लहजे के साथ गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातिब हो रहे थे कि ऐ अल्लाह, सातों आसमान जिन पर वो साया फगन है, ऐ इनके परवरदिगार, सातों ज़मीन और जिनको वो उठाए हुए हैं इनके परवरदिगार, और शयातीन जिनको उन्होंने गुमराह किया है इनके परवरदिगार, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई, इसके बाशिंदों की भलाई का सवाल करते हैं और इस बस्ती के शर से और इसके बाशिंदों के शर से और इसमें जो कुछ है इसके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए मुखातिब होकर सहाबा कराम से कहते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ आगे बढ़ो। इस तरह वहाँ पे पड़ाव मतलब जो है डाल दिया जाता है। सामने कराम इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जहाँ पड़ाव डालते हैं वहाँ अलम देना या किसी को कमांडर बनाना ज़रूरी होता है। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा के दरमियान बताई कि मैं कल सुबह झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। सुबह हुई, हर सहाबी ये सोच रहा था कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगज़ीदा बंदा हूँ और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, उसका रसूल मोहब्बत करता है, शायद वो अलम मुझे अता कर दिया जाएगा। सब लोग वहाँ बेकरार खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब बेदार हुए और तमाम मतलब फौजियों के दरमियान आकर खड़े हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हज़रत अली कहाँ हैं? हज़रत अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि उनकी आँख आई हुई है और वो आँख के दर्द की वजह से नहीं आ पाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आपने अपने लुआब दहन को उनकी आंखों में डाला और इस तरह वो शफायाब हो गई और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता किया। ये वही सहाबी हैं जिसे जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, इसका रसूल इससे मोहब्बत करता है। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा अता कर दिया गया। खैबर के इस गज़वे में उन्होंने जब झंडा लिया तो कहा, या रसूलल्लाह, मैं इससे इस वक्त तक लड़ूंगा कि हमारे जैसे हो ये लोग हमारे जैसे हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि इत्मीनान से जाओ, यहाँ तक कि इनके मैदान में उतरो, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हुकूक इन पर वाजिब होते हैं इनसे इन्हें आगाह करो। बखुदा तुम्हारे ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। ये अहकामात, ये तलक़ीन हक़ करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को इस्लाम का अलम अता फरमाया और ये लड़ाई का पहला आगाज़ था। सामीन इकराम, जहाँ खैबर की लड़ाइयों का जिक्र किया जाता है, इस गज़वे के सिलसिले में कहा जाता है कि जो खैबर है ये आबादी दो मंतकों यानी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक मतलब हिस्सा जेल में 5 किलों पर मुश्तमिल था और बकिया हिस्सा दो अलग मतलब जो है किलों पर मुश्तमिल था। जो पहला हिस्सा है जो 5 किलों पर मुश्तमिल था वो है हिसन नाइम और हिसन सअब बिन माज और हिसन खिला बिन जुबैर और हिसन बिन अबी और हिसन बिन नजारा। तो ये मतलब जो है 5 किले थे जो एक हिस्से में मतलब जो है रहते थे और जिसमें मशहूर 3 किलों पर मुश्तमिल इलाका नता कहलाता था और बकिया दो मतलब जो किले पर मुश्तमिल इलाका शक के नाम से मशहूर था। खैबर की आबादियों का जो दूसरा हिस्सा था वह कतीबा कहलाता था और इसमें से 3 किले मौजूद थे। उसमें से एक किला था हिसन बिन हमूज और ये कबीला बनु नसीर के ख़ानदान अबू अकीफ का किला था और हसीन बिन वती ये दूसरा किला था और तीसरा था हसीन बिन सलालम। ये मतलब जो है 3 किले थे जो इस मतलब जो है मंतखा यानी हिस्सा कतबा में का जो कहलाता था इसमें इस तरह मतलब जो है वो लोग थे। तो इस 8 किलों के अलावा खैबर में मज़ीद किले और गढ़ियाँ भी थी मगर वो छोटी थी और क़ुव्वत और ताकत में इन किलों के हम पल्ला न थी। जहाँ तक जंग का ताल्लुक़ है तो ये सिर्फ पहले मतलब जो है जो हिस्से में जंग हुई तो उसी में हुई। दूसरे हिस्से में जो 3 किलों की लड़ाइयों के सिलसिले में जो आता है इसमें जंग के बगैर ही मुसलमानों के हवाले ये किले मतलब जो है महसूर कर दिए गए। सामने इकराम, इस तरह खैबर की जंग की आगाज़ हुआ था। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसकी मज़ीद तफसीलात कि इन 8 मतलब जो है जो किले थे उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी स्ट्रेटजी तैयार की और किस प्लान के तहत वहाँ पे हमलावर हुए और किस तरह से हुई उसकी तफसीलात अगली क्लास में देखेंगे। मगर आज की जो तफसीलात हैं मुझे और आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग वो बेहतरीन प्लानिंग थी जिसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक मदीने में दाखिल होने के बाद किस तरह से लोगों को ज़ेर किया और किस तरह से रियासत को उरूज पहुँचाया और किस तरह से लोगों के ऊपर अपना लोहा मनवाया कि इस्लामी ताकत वो ताकत है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत होती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ देने वाले वो मतलब मुजाहिदे इस्लाम होते हैं जो छोटी मतलब जमीयत के बावजूद बड़ी जमीयत से लड़ पड़ने की ताकत रखते हैं और जब वो खड़े हो जाते हैं तो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हो जाते हैं। ये मुसलमानों का वो अतवार, वो ताकत और वो उरूज इसके ज़रिए से मुझे और आपको मालूम होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको भी इसी तरह का साथ मैसर फरमाए, मुझे और आपको भी इसी तरह की मतलब हुक्मरानी और लीडरशिप आज भी मैसर अता करे और मेरे और आपके लिए आसानियाँ और दीन पर क़याम होने वाला बेहतरीन मतलब जो है ज़रिया मेरे और आपके लिए भी फराहम करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।